ہم تنگوش ہو جائیں. میری مراد عالمی نوجوان مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں. حضرت کے آنے سے قبل ہم ایک بار ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، سادات کرام، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، یا علی، ایک بڑی دور پر جلوہ بار عرش مقام سادات کرام خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس منبع اخلاص پوری طریقت زبر راہ شریعت شہزادہ شہید راہ مدینہ ضرور منظور مشاہد حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد معین الدین اشرف شفیع الجیلانی صدر عالمیہ مدی جمعیت العلماء وزیر سجادہ آستانہ اشرفیہ ساتھ ہی ساتھ شہزادہ غوث العالم جانشین محبوب اشرف حضرت علامہ نور شاہ حسین اشرف شفیع الجیلانی نامت قاسم العالیہ بانی محفل صوفی باصفا منبع اخلاص و وفا پیکری صدق و صفا جانشین سید قدیر اشرف حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد خلیف اشرف شفیع الجیلانی و جملہ باوقار عرش مقام سادات کرام جملہ عوام اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم علی التذکر جیرانی بذی القلمی مظن معذران مخلص بدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحما. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المطيع الامي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت وحی پیمبر نظر خلق امام اے شفِ زمانہ زمانہ مدد نما کرہائے برقرار کلید کرم کشا معین الدین حسن عالم پناہ مسوح ماں غریباں یک نگاہ پیر پیران پیر میران شاہ جینا و صفات کس نظرداری برحال ماں پریشان و صفات لی خمسۃ نقفی بہا حر الوباء الحاق المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جلتو حبیبا مرد دارم زنسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبا بری نازم کے حسم امت تو گناہ دارم ولیکن
خوش نصیبوں الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سلطانی جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، اسی کے واسطے بلکہ یوں کہہ لیں انہی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں. انہی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں. یزیدی فوج کہاں شبر کہاں عباس، کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں. یزیدی فوج کہاں شبر کہاں عباس، کہیں سنا ہے ہرن شیر مار لیتے ہیں. کہیں ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے، گھروں میں چگنا تو نامرد کی علامت ہے. یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے، گھروں میں چگنا تو نامرد کی علامت ہے. یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے. خیر میں کربلا نہیں پڑھوں گا، صرف اس لیے کربلا کا ذکر کر دیا تاکہ آپ بالکل کم کر دیں. میں شاید تو نہیں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اس لیے سرکار تاجدار کربلا کا ذکر کر دیا، مولا علی اصغر کا کر دیا. پہلی بات تو یہ تاکہ برکتیں حاصل ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید اوحد الدین سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی اسی تاجدار کربلا کے وارث ہیں جو باتیں کربلا کی ریت کے ذروں پر مولا حسین نے جو امانتیں حضرت امام زین العابدین کو عطا فرمائی تھی، ان امانتوں کی وراثت کہیں نہ کہیں سرکار مخدوم پاک کو بھی حاصل ہونی تھی. یوں کہہ لیجئے کہ جناب جتنی نسل حسینی ہے، چاہے وہ خواجہ ہندوستان کی ذات ہو یا مخدوم سمنان کی ذات ہو، ان تمام اولاد کو جو کچھ رموز و اسرار ملنے تھے وہ اسی سرزمین پر حضرت سرکار امام عرش مقام نے اپنے جانشین حضرت امام زین العابدین کے مقدس سینے میں ڈال دیے تھے. زین العابدین کیسا جانشین ہے؟ شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، اپنی کتاب 12 امام میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت سرکار محمد بن حنفیہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں حنفیہ کی نسل سے، ہے حضرت مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد سے، لیکن ہے بیٹے حضرت مولا علی کے. اب سرکار امام زین العابدین تو مولا علی کے پوتے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زین العابدین کی رگوں میں سیدہ زہرا کا خون دوڑتا ہے. لوگوں کو فاطمیت بھی سمجھ نہیں آتی. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شان یقیناً بلند و بالا ہے. ایک ایسی ذات مولا علی کی ہے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سرکار مولا کائنات کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے ان کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام ان شہزادگان کا ہے، اس لیے کہ انہیں نسبت سیدہ زہرا سے حاصل ہے. حضرت عباس علمبردار ہے مولا علی کے بیٹے، لیکن ساری زندگی مولا حسین کا احترام کرتے ہیں. کسی نے پوچھا عباس تمہارا باپ بھی علی ہے، حسین کا باپ بھی علی ہے، تو پھر تم حسین کی اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا تھا باپ دونوں کا علی ہے، مگر یہ بھول گئے کہ میری ماں حسین کی ماں کی کنیز ہے، میری ماں حسین کی ماں کی باندی ہے. یہ سیدہ کا مقام ہے، مقام سیدہ پھر کبھی پڑھا جائے گا. لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں سرکار محمد بن حنفیہ کو وہ نسبت حاصل نہیں ہے جو حضرت امام زین العابدین کو حاصل ہے. حضرت سید الساجدین امام زین العابدین اور حضرت محمد بن حنفیہ آمنے سامنے ہوئے اس مسئلے پر کہ تبرکات مولا کائنات ان کے حوالے کیے جائیں.
तेजी से पढ़ के करता हूँ, मुझे सुल्तान की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करना है। लेकिन बाद में बैकग्राउंड बता दूं कि सरकार मखदूम पाक मिलते कहाँ से हैं। सुने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, सरकार मौला ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। बात ये हो गई, मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मैं रिश्ते में तुम्हारा चच्चा लगता हूँ, इसलिए तबर्रुकात मुझे दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अपने बाबा हुसैन का जानशीन मैं हूँ, इसलिए तबर्रुकात मेरे पास रहने चाहिए। इख्तिसार के साथ अब करता हूँ। तब फिर चलो किसी बड़े से फैसला करा लो, मैं तुम्हारा चचा हूँ, हक मेरा बनता है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से गुफ्तगू हुई, बात चली। जब बात चली तो जनाब अब कौन सा बड़ा ऐसा है जो फैसला करे, और फैसल भी तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों का कद जो है उनकी निगाहों के सामने हो। इख्तिसार के साथ अर्ज करूँ, बात ये सेट हुई कि जनाबे वाला जो शख्स नबी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिही सल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तो मोहम्मद बिन हनफिया और सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गुफ्तगू चल रही है। बात तबर्रुकात मौलाए कायनात की है कि किसको मिलना चाहिए, वो अली का बेटा, वो अली का पोता है। अब बात ये आई कि फैसला किससे कराया जाए। मदीना भरा पड़ा है, मगर इस लेवल का कौन लेकर आए जो ज़ैनुल आबिदीन के बारे में फैसला करे। आखिर आप सुनकर हैरत करेंगे, बात ये फाइनल हुई कि हजर अस्वद पर चला जाए और हजर अस्वद से गवाही दिलवाई जाए। मैंने हवाला पढ़ दिया है अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुर रहमान जामी की किताब 12 इमाम। आप उनसे जाकर बातें कीजिएगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे लिख देते हो। अर्ज क्या कर रहा था, हजर अस्वद के सामने जाया जाए, हजर अस्वद से फैसला कराया जाए कि ये तबर्रुकात किसको मिलने चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा हजर अस्वद से फैसला कराओगे ज़ैनुल आबिदीन, कहा हजर अस्वद से फैसला कराया जाएगा। आप हैरत करेंगे, हजर अस्वद के सामने दोनों शहजादे गए। मोहम्मद बिन हनफिया ने हजर अस्वद से खिताब किया, वो पत्थर बोला नहीं। कहा देख लिया अली, देख लिया अली नाम था ना, मौला हुसैन को अली नाम से बड़ा प्यार था। जितने बेटे हुए हर बेटे का नाम अली रखा। हाँ, हर बेटे का नाम, पहला बेटा हुआ तो अली रखा, दूसरा बेटा हुआ तो नाम अली रखा, तीसरा बेटा हुआ तो नाम अली रखा। बस पहचान के लिए बड़े बेटे को अली अल अकबर कहा जाता है, दरमियानी बेटे को अली अल औसत कहा जाता है, और 6 महीने में जो शहीद हो गए उन्हें अली अल असगर कहा जाता है। मगर है तीनों अली। अली अली करना ये मौला हुसैन की सुन्नत है, बिदअत नहीं है। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि मशाइख की मौजूदगी में जुमले बयान करना और जुमले कहना जाहिर है कि ये अदब के खिलाफ है, लेकिन ये इनकी करम नवाजियां है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और करने के लायक हूं भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये कर रहा था हजरत मौला ज़ैनुल आबिदीन, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया बोल के साइड हो गए। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने आए और फरमाया हजर अस्वद बता ये तबर्रुकात किसके हैं। हजर अस्वद से आवाज आई हुजूर आप कल भी मौला हुसैन और मौला अली के जानशीन थे, आज भी आप ही मौला अली के जानशीन हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ज़ैनुल आबिदीन के पुकारने से पत्थर बोल पड़ते हैं तो जाहिर बात है कि ये ज़ैनुल आबिदीन के जुमलों का सदका है कि खानवादा अशरफिया के हर एक खतीब के पास जुमले हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। ये ज़ैनुल आबिदीन की खून की रवानी है। तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह का कुरान फरमाता है जो ईमान लाया और अच्छे काम किए सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते। ये जो अल्लाह वालों की मोहब्बत है ना, ये जो अल्लाह वालों की मोहब्बत ये बंदों की डाली हुई नहीं है। अगर बंदों की डाली हुई होती तो इधर से उधर ट्रांसफर होती रहती। मगर क्या बात है, सदियां गुजर गई, लोग सुल्तान गौसुल आलम की चौखट नहीं छोड़ते हैं। जिस हाल में रहते हैं उस हाल में चले आते हैं, इसलिए कि लोग जानते तकवा अच्छा, परहेजगारी अच्छी और जनाब इबादतें अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा। मगर मौला हुसैन ने करबला में खड़े होकर अमर बिन साहब के लश्कर से ये नहीं कहा था कि मैं हुसैन हूँ, 25 हज किए मैंने। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा था मैं हुसैन हूँ, बहुत सारे सदके दिए मैंने। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा था मैं हुसैन हूँ, जिंदगी की कभी कोई नमाज कदा नहीं की। हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया तो फरमाया मैं वो हुसैन हूँ जिसका बाप अली है। इसलिए कि जनाब
यज़दानी का लक़ब हुज़ूर गौसुल आलम को मिला। बेशक। ऐसे वैसे नहीं मिला कि मुरीद ने दे दिया महबूब यज़दानी को। लंबी दास्तान है, मगर एक मरतबा 27 रमज़ान शरीफ को देखिए, किस्सा याद आ गया बुजुर्गों की बरकत। 27 रमज़ान शरीफ को हज़रत की सोचा से चले मदीना पहुँच गए कि अल्लाह वालों के लिए ज़मीनें यूँ समेट दी जाती। इसका जिक्र कुरान में भी है। इस कुरान मुक़द्दस में आसिफ बिन बरकिया की तफसीर पढ़िएगा सूरतुल नमल की, और बहुत सारी अहादीस की किताबों में, सही बुखारी में मौजूद है कि जनाब दौरे मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम में उलमा तशरीफ़ फरमाए, इशारा करके गुजर रहा। अर्थ ये कर रहा था ज़मीन समेट देना। देखें, ये है सुल्तान गौसुल आलम, अभी भी सोचा में है, अभी मदीना में। कौन जाने कब मदीना में है, कौन जाने कब की सोचा में। मगर दिन में मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि हज़रत मखदूम जलालुद्दीन जानिया जहाँ गश्त ने जो अपने इख्तियारात किए थे, जिसमें 114 सिलसिलों की खिलाफत भी थी, जिसमें ताबीज़ गफूरी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें एक ताकत ये भी थी कि सर से अगर बंदा देखे तो जिस्म इतना साफ और शफाफ हो जाता कि पैर के नीचे का तिल भी नजर आता था। जब इख्तियार इतना है कि सर से कोई देखे तो तलवे के नीचे का तिल नजर आ सकता है, तो इतने करीब बैठे अशरफियों का दिल नजर नहीं आ सकता। बात तो हकीकतों की है, हमारी झोलियां छोटी हैं, शहंशाह की शहंशाही बहुत आला है। 900 साल से नूरुल ऐन का सदका बच रहा है। बड़े बड़े शहंशाह है, बड़े बड़े कच खुला है, टोपियां झुक गई मगर मकाम अशरफ को नाप नहीं सके हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तान को मकाम दिया। निस्बते गौसुल आलम की बात बहुत बुलंद वाला, उनके बैकग्राउंड की बात बहुत बुलंद वाला, उनकी खुद की मेहनतों के मामला इतने आलीशान है। खैर, बातें लंबी हो जाएगी, मैं तेजी से गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ लेकर जाता हूँ। ये सरकार मखदूम पाक की बात है। हुजूर गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी कुद्दसा सिर्रुहुल नूरानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात से टूटा सिफात है। निस्बतें बेमिसाल, इख्तियारात बेमिसाल, तसर्रुफात बेमिसाल। अर्ज़ कर रहा था, रूए ज़मीन पर औलिया बहुत आए मगर अशरफ सुल्तान जैसी बात नहीं आई। महबूब यज़दानी का लक़ब 27 रमज़ान शरीफ को 4 कदम बढ़ाया, मदीना पहुँच गए। शेख इस्फहानी वहाँ पहले से मौजूद थे। जैसे ही मखदूम पाक को देखा तो कहा, आओ अशरफ आओ, तुम्हें महबूब यज़दानी का लक़ब मुबारक। ये लक़ब मदीने में मिलता है। और आपको मालूम है 500 वक्त के औलिया और कुतुब उस वक्त रूए ज़मीन मदीना पर मौजूद थे। और शेख महमूद की मौजूदगी में 500 औलियाए कामिलीन ने हज़रत मखदूम पाक को ये मुबारकबादी दी कि आपको महबूब यज़दानी का लक़ब मुबारक। आज 500 उलमा हमारा लक़ब ले, हम गिने तो नहीं आ पाते। माफ़ कीजिएगा कि 500 उलमा ने हमारे अलक़ाबात लिए कि नहीं लिए, इल्ला माशाअल्लाह। मगर जनाब वो गौसुल आलम की ज़ात है, शहर रसूलुल्लाह का है, बेटा रसूलुल्लाह का है, गुलामान रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की टीम मौजूद है और सरज़मीन मदीना में महबूब यज़दानी का लक़ब मिल रहा है। खैर, बात लंबी हो जाएगी। सरकार गौसुल आलम कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी सामानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बहुत बुलंद व बाला ज़ात है। अब मैंने शुरू में कर दिया कि उनके वक़ार और उनके मर्तबे को कोई बंदा उसकी हकीकत तक पहुँचना चाहे तो हकीकत तक नहीं पहुँच सकता। एक किस्सा में बयान करता चलूँ। आयत मैंने पढ़ी, ये जो मोहब्बत है ये अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है। जब अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है तो बंदों के निकालने से ये मोहब्बत निकलती नहीं है। ठीक है, अगर बंदों के निकालने से ये मोहब्बत निकल जाती तो देवबंद कभी कामयाब हो जाती, लेकिन बंदों के निकालने से ये मोहब्बत निकलती नहीं है। जाहिर है जिस चीज को रहमान डालता है उस चीज को रहमान ही निकालता है। अल्लाह वालों की मोहब्बत जब रहमान ने दिल में डाल दी, अब हुकूमतें पाबंदियां लगाएं, सज्जादा नशीन ऐलान करते रहे, मगर होगा वही जो मखदूम पाक चाहते हैं। बात यह है कि कशिश और डोर असल जिसके हाथ में है वो तहे मज़ार आराम कर रहा है और किस शान के साथ आराम कर रहा है। लोग कब्र में जाने से घबराते हैं, यहाँ जाने से पहले ही आराम फरमाते हैं। जी तारीख पढ़े, अब मखदूम पाक ने अपनी जिंदगी में अपनी कब्र बनवा दी ताकि आखिरत की याद आती है।
हाँ, यूँ ही तो कोई मखदूम पाक नहीं बन जाता। और वहाँ बैठ कर रिसाला कमरिया लिखा, उसी में उसी का तर्जुमा बशरतुल मुरीदीन भी कहा जाता है। और उसमें हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन जुमला फरमाया था, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों ने आलम मलकूत में निदा दी कि शान अशरफ की यह है कि जिसको अशरफ ने मुरीद कर लिया, अशरफ के सिलसिले में जो मुरीद हो गया, उसके माथे पर अब और दरगुजर का कलम फेर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इसका मामला क्या है, ये देखा जाता है साथ किसके आया है। ये गौसुल आलम है यार। हाजी चिराग हिंद के पास एक डाकुओं की जमात आई, हुजूर मुरीद कर लीजिए, कर लेंगे, लेकिन डकैती से तौबा नहीं करेंगे, मगर मुरीद कर लीजिए, डकैती से तौबा नहीं करें। कहा चले जाओ, हम मुरीद नहीं करते, पहले तौबा करो तो मुरीद करेंगे। मखदूम पाक के देखे ना सखावत देखे शहंशाह की, आए गौसुल आलम की, हम जैसों को यूं थोड़ी निभा रहे, कुदरत ने उन्हें इतना बड़ा दिल दिया है कि वो हमारे आप जैसों को निभा रहे। अब क्या कर रहा था, ये डाकुओं की जमात आई मखदूम पाक के पास, और हाजी चिराग हिंद ने लौटा दिया है, आप मुरीद कर लीजिए लेकिन डकैती से तौबा नहीं करेंगे। मखदूम पाक ने फरमाया मुरीद तो कर ले पहले। जी हुजूर मुरीद कर लिया, उन्होंने ऑटोमेटिक तौबा कर ली, ऑटोमेटिक तौबा कर ली। ये मखदूम पाक है यार। बड़े बड़े, मैंने शुरू में अर्ज कर दिया, बड़े बड़े कजकुलाहों की कुलाहें जहाँ झुक जाती हैं, वो गौसुल आलम का दरबार है, वो गौसुल आलम की चौखट, ड्यूटियाँ जिनकी दावत करती हैं। आखिरी किस्सा पढ़ देता हूँ और बात को खत्म कर। ड्यूटियाँ हज़रत फरमाते 30 साल तक मखदूम पाक फकत सफर फरमाते, प्लेन का नहीं, अपनी पर्सनल कार से नहीं, वो साहिली सफर है, समंदरों का सफर है, घोड़ों का सफर है, ऊँटों का सफर है, 30 साल तक पैदल सफर है। अच्छा 30 साल सफर करते 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 एक ऐसी जगह पहुँचे, सैलाब यानी पानी के किनारे, यहाँ खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं और कोई इंसान नजर नहीं आता। हज़रत मखदूम पाक फरमाते 3 दिन गुजर गए और खाने को कुछ नहीं मिला। ये सफ़र ऐसे होते थे सफ़र। हाँ, मंजिले इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। कोई घर छोड़ के बाहर कमाने जाता है तो माँ का दिल तड़पता है कि ये तो घर कमाने जा रहा है। उस माँ के दिल पर कैसी छुरी चली होगी कि वो तख्ते हुकूमत को ठोकर मार कर हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा रहा है। लेकिन जनाबे वाला करबला के रेज़ारों पर जद्दे करीब ने ऐसे 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 गुल खिला दिए थे कि उन मुसीबतों के सामने हर हुसैनी को मुसीबत अपनी छोटी नजर आती है। जब अगर बंदा अपने अपनी मुसीबतों को देखता रहे और फिर इमाम हुसैन के गम को याद कर ले तो फिर बंदा आखिर यही कहता हुआ नजर आता है, जो उनकी कुर्बानियां थी हमने तो कुछ नहीं दी। टूटे हुए हौसले नामे हुसैन से जिंदा हो जाते हैं, बिखरी हुई तमन्नाएं नामे हुसैन से सिमट आती है, टूटी हुई उम्मीदें नामे हुसैन से भर आती है। करबला के उस ताजदार ने सारी कायनात को ता जिंदगी एक ऐसा नक्श दे दिया कि ता जिंदगी बंदा उस पर चलता रहे और कामयाबी की जोर थामे रहे। बात को खत्म करता हूँ, अलार्म बज चुका है और मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रिवायत पढ़ रहा था, एक सरकार मखदूम पाक तशरीफ ले जा रहे हैं, फरमाते 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो लोग परेशान हो गए। हम कभी सफर करते कभी उतर जाते, कभी सफर करते कभी उतर जाते, 3 दिन तक कुछ नहीं मिला। फिर एक जगह बैठे, जब एक जगह बैठे तो क्या हुआ, छोटी सी चूहिया जितनी बड़ी चींटी आई। मैं राजस्थान में तो तकलीफ नहीं कर रहा कि मुझे चूहिया और चींटी समझाना पड़ेगा, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूहिया जितनी बड़ी चींटी आई और चींटी मखदूम पाक की खिदमत में आई। हाँ, और मखदूम पाक से उस चींटी ने कुछ इशारा किया, ठीक है, कुछ इशारा किया। जब चींटी ने इशारा किया सारे हमरा ही देख रहे हैं कि ये चींटी से मखदूम पाक क्या बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो चींटियों की समझ जाते हैं वो हमारे दिलों की नहीं समझे, क्या बात कर रहे हैं। हवाला पढ़ लीजिए, हज़रत अल्लामा असलत शरीफिया साहब किबला तशरीफ फरमाए, खानवादा सरकार कलाम और खानवादा आला हज़रत शफी के शफ़ी शराब सब मेरे सामने तशरीफ फरमाया। तो कुछ
साहिब पेशरफी उठाकर 8वें सहीफे में पढ़ लें। हवाला पढ़ देता हूँ सिर्फ इसलिए, हाँ वीडियो सुन के तकलीफ नहीं कर रहा, बिहम्दिल्लाह मखदूम पाक की चौखट के जर्रों का सदका है बिहम्दिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे मुर्शिद हुजूर मोइनुल मशाइख की दुआओं की बरकत, मेरे माँ बाप की दुआएं, मैं बात को खत्म करता हूँ तेजी के साथ। बात आखिरी कर रहा था, चूहिया जितनी बड़ी चिमटी आई और आने के बाद इशारा किया मखदूम पाक को, और मखदूम पाक को जब इशारा किया पता नहीं क्या बात हुई, चली गई। लोग परेशान है, मगर सरकार मखदूम पाक से पूछे क्या की बात है। ठीक है हुजूर, मुझे सिलसिला आलिया अशरफिया आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, सताई अशरफी से नकल किया। क्या नकल किया? एक पहर के बाद चिमटी फिर आई और फिर उसने हजरत से कुछ कहा। चिमटी से हजरत बात कर रहे हैं। इसकी मिसाल हुजूर के दौर में भी मौजूद है, इसकी मिसाल गौसे पाक के दौर में भी मौजूद। हुजूर ने सांप से बात करके बताया कि हमारे वाले जो हो जाते हैं फिर वो इस लेवल तक भी आ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे। अर्ज ये कर रहा था, आखिरी बात तेजी के साथ, वो चिमटी बात कर रही है, बात करके चली गई। जब बात करके चली गई हज़रत मखदूम पाक ने, अच्छा दूसरी बार जब वापस आई तो मखदूम पाक ने अपने साथियों को इशारा किया कि चलो, सारे चले। थोड़ी दूर जाने के बाद मिठाइयों का ढेर लगा हुआ है, गालिबन 40 ढेर मिठाइयों के लगे हुए। एक मिठाई का ढेर थोड़ा सा बड़ा है और बाकी छोटे छोटे मिठाइयों के ढेर लगे हुए। हज़रत मखदूम पाक उस मिठाई के ढेर पर बैठ गए जो बड़ा ढेर था, बाकी जितने अमराई थे वो सब अपने अपने दस्तरखान पर बैठ गए। ये गौसुल आलम की दर की चौखट है, यहाँ तो जनाबे वाला कुछ ना हो तो जानवर भी जो है वो लंगर लेकर आ जाते हैं, यहाँ से कोई महरूम नहीं जाता है। सुल्तान गौसुल आलम की ये सखावत है, लंगर किसी के घर का हो अता सब पर मखदूम पाक की है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, चिमटी है, मिठाइयों का ढेर है, बहरहाल तनावुल किया। जुमला तो ताज्जुब वाला है मगर लिखा है तो पढ़ देता हूँ। चिमटी ने इशारा किया, इल्तिमास किया कि हुजूर दुआ फरमा दो। हज़रत मखदूम पाक ने हाथ उठाया और दुआ फरमा दी। चिमटियों को क्या फायदा, आप भूल न जाए इसलिए बता दूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जैसे आसमान वालों के लिए सितारे अमान हैं, वैसे जमीन वालों के लिए मेरी अहले बैत अमान है। हाँ, जब नैया डूबने लगे तो अहले बैत इत्तहार का दामन थामना। बात खत्म कर रहा था, सरकारे गौसुल आलम ने बैठ कर तनावुल फरमाया, दुआ फरमाई। दुआ फरमा के जब फिर चींटियों का काफिला छोड़ने आया, हज़रत मखदूम पाक को क़यामगाह तक जहाँ से ले गया था, ये सरकार गौसुल आलम का मामला, ये शान है। अगर कोई पूछे, कौन पूछे कि माजरा क्या है, तो जाहिर है पूछने की जसारत उसी है जिसे अपने सीने से लगाकर सब कुछ देकर जानशीन बनाया है। नूरुल ऐन खड़े हुए और आंख के नूर ने अदब से पूछा, सरकार ये माजरा क्या है, क्योंकि आ रही है ये इतने सारे खाने कहाँ से लाई, क्या कह रही है? तो हज़रत मखदूम पाक ने फरमाया, बेटा नूरुल ऐन वो पहले दावत देने के लिए आई थी, इजाज़त देने के लिए आई थी। बहरहाल उसने दावत दी, मैंने कबूल कर दी। 3 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, और वो जो मिठाइयों का ढेर है, एक सखी आदमी यहाँ से कुछ दिन पहले गुजरा था तो उसने यहाँ पड़ाव किया था। ठहर जाने के बाद जो लंगर बचा था, जो खाना बचा था, उसने इन चींटियों की दिलों में सुराखों के बाहर डाल दिया ताकि ये चींटियाँ उससे ग़िज़ा हासिल करती रहे। चींटियों ने मुझे बताया कि हुजूर हमने उन तमाम लंगर को जमा करके रखा है कि कोई अजीमुश शान मेहमान आएगा तो उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। आपको देखकर यकीन है कि आपसे ज्यादा अजीमुश शान इस वक्त हुए जमीन पर कौन मेहमान होगा, इसलिए सारा दस्तरखान हमने आपके लिए लगा दिया। ये सुल्तान गौसुल आलम का सदका है। चींटियां भी उनके यहाँ मेहमान नवाजी करती हैं, बिल्लियां भी उनके यहाँ मेहमान नवाजी करती है। हम और आप अपने मुकद्दर पर ताउम्र रश करें कि जिनकी तवज्जो है खास से जानवरों के मुकद्दर बदल जाते हैं। हम तो बहरहाल अशरफुल मखलूकात हैं। मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं मगर मुश्किल कुशा, इब्ने मुश्किल कुशा का मामला बहुत आला है। बातें हमारे मामला गौसुल आलम के कद के सामने, हमारे मामलात की हैसियत ही कुछ नहीं है, हमारे मामलात और हमारी परेशानियों की वक़ात ही कुछ नहीं है। गौसुल
आलम का मामला इतना अजीम शान। खैर जो कुछ बयान हुआ उसमें कोई खता रह गई हो तो अल्लाह पाक अपनी रहमतें ताम्मा से मुआफ़ी अता फरमाए और हम सबको गौसुल आलम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक मरहमत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।